video, then like and subscribe my YouTube channel. The topic for today is electric field. Electric field. In previous video, we have explained about the Coulomb's law, the superposition principle, dielectric constant, all the concept in this regard, in that regard. Now the term is electric field. Now what is electric field? Electric field means field. It is a field. Field means space. So what is electric field? It is the space. Faraday was the first scientist who discussed about the electric field, the space property of the charge. What is electric field? It is the space property of the charge. Space property of the charge. It was first of all discovered by the scientist named Faraday. Discovered by Faraday. Now the question is, what is electric field? Electric field means it is a space around any charge. It is the space or the region around any charge up to which its effect can be experienced. I have told you that the charged object exerts the electrostatic force of attraction or repulsion to the another charged object. Now that force of attraction or repulsion will be limited up to some range, because you know that force is proportional to 1 by r square. It means what? If we increase the value of r, if we are going to increase the value of r, automatically the value of force will decrease. If you are going to increase the value of r, it will decrease the value of force. So what does it mean? The effect or the influence of any charge will be limited up to certain range. कहने का मतलब क्या है कि since कि Coulomb's force जो है आपका वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम चार्ज से डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा. तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसके बाद हमारा जो वो Coulomb's फोर्स है वो महसूस नहीं हो पाएगा. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अगर यू आर टेकिंग एनी मैग्नेट, अगर तो सपोज दिस इज my magnet, suppose this is my magnet, so if you are placing the iron nail here, it will be attracted, here also it will be attracted, but if you are placing it very far distance, it might be possible that that nail will not be attracted by the magnet. कहने का मतलब यह है कि मैग्नेट अपना जो इफेक्ट है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का वो तभी तक शो करेगा जब तक कि आपका वो नेल जो है उसके रेंज में हो. सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज बॉडी अपना इन्फ्लुएंस तभी तक दिखा पाएगा जब तक कि कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट उसके डोमिनेंस के रेंज में है, उसके प्रभुत्व के अंदर में है, उसके क्षेत्र के अंदर में आता है. तो ये जो एरिया है, ये जो रीजन है किसी भी चार्ज के क्रॉस, जहां तक कि उसका इफेक्ट हम फील कर पाते हैं, दैट रीजन इज नोन एज व्हाट? दैट रीजन इज नोन एज, दैट रीजन दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. कहने का मतलब क्या है? लेट अस सपोज दैट दिस इज माय एनी चार्ज ऑब्जेक्ट q and it can influence all the objects or particles within the range of this boundary. You can see this boundary, irregular boundary I have made within the boundary of that surface. So any object, if it will be placed at the point A, it will be attracted or repelled. Charged object, it will be charged. Neutral पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. Remember it. If it will be placed at B, it will again attracted or repelled. If it is placed at C, can you see the point C? C is the boundary of that surface, boundary of that region. मतलब कि यहाँ तक आने पे थोड़ा बहुत एहसास होगा कि कुछ है जो कि हमें अट्रैक्ट या रिपेल कर रही. लेकिन what will happen if we take another point, the fourth point beyond that boundary? If we are taking another point, let that be D, then what will happen? Will the force due to the point O, due to the charge Q, will it affect any force? Will it give any force, apply any force at the point D? Yes or no? No. There will be no influence of the charge capital Q at the point D. This is what the meaning of electric field. कहने का मतलब क्या है कि electric field is the space around any charge. It is the space around any charge up to which its effect can be experienced. So now note down the definition. What is electric field? It is the definition. Okay, so definition लिखेंगे. Electric field, it is the space around any charge
space around any charge up to which its effect can be experienced. Okay, so what are the important points here? That important points are, it is a space. What it is? It is a space around the charge. So what space means? What space means? Three-dimensional figure. Three-dimensional. Alright, it means what? If this is my charge, its effect will be in all direction. Its effects will be in all directions. Since the blackboard is 2D, so you can see that this picture is looking in two-dimensional. But the effect will be in this direction also, under the blackboard also. So it will be like a 3D. It means that up, down, right, left, north, south, east, west, everywhere. At the same distance you will experience the equal amount of force. It means what? यहाँ पे बहुत important बात हमें यहाँ ध्यान देनी है कि space जो है आपका, हमने क्या कह दिया कि ये space कैसा है? 3 dimensional. ये कैसा है? 3 dimensional है. तो इसका अर्थ यह हुआ कि at a fixed distance, suppose this is my charge Q, so at a fixed distance, let that distance is R1. You take the distance R1 in all possible directions. Are you getting my word? I am taking R1 in all possible directions. Now join all these points. Join. Oh, okay, done. Chalo, ठीक है? Now if you join all these points at an equal distance, name it. Let it be A, it will B, it is C, it is D, and it is E. So what will happen? That electric field at the point A will be equal to at the point B, will be equal to point C, will be equal to D, will be equal to E. What does it mean? Electric field is represented by E. So EA is equal to EB. It is a vector quantity. I will tell you why it is vector. ED. Alright, are you getting my words? A, B, C, D, and it is equal to E. Okay, E will be same, so write it as EF. EF. Alright, so electric field at the point A is equal to B, electric B is equal to C equal to D. Now, why it is? It is because that the mathematical formula, or you can say that how can we measure the strength of electric field? For that, we calculate the force experienced by the unit test charge. What we calculate? Calculate the force experienced by the unit test charge. I'm just explaining this point in detail, very important. You just remember this, that at the same distance R, the value of electric field is always same. At the same distance R, it is always same. So we can say that electric fields are spherically symmetric. What is the main thing we have to remember? That electric field is what? This implies that electric field, it is represented by E vector. What is electric field representation? It is represented by E vector. And it says that electric field is what? It is spherically symmetric. E vector is spherically symmetric. Spherically symmetric. Now this is very important point. Very important point for your objective types question. Why it is spherically symmetric? Give the reason. So please pay attention. Now see. Okay. Now electric field E vector is actually equal to the force experienced by unit positive test charge placed at that point. Now understand this fact. Now suppose this is my point O, where I kept a very huge amount of charge. Very huge amount of charge. That capital Q is very greater than 1 coulomb. Unit positive test is very greater than. So now let this point A. And here I am placing 1 coulomb charge. Now suppose this 1 coulomb of charge experiences the force F. Or let that I am placing it earlier. First of all, you place it more than 1 coulomb. Okay, I have placed Q naught coulomb of charge. So let that Q naught coulomb charge experience what amount of force?
experiences F vector for what? Due to capital Q. Alright, Coulomb's force लगेगा किसके किसके बीच में? Q नॉट और Q के बीच में कितना होगा इसकी वैल्यू? तो तुम्हें मालूम है F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 pi epsilon naught Q. You know these things, okay? All of you know these things, okay? Coulomb's, that is the Coulomb's formula. You can go through my previous video. I have explained in detail all the things about Coulomb's formula. So Q naught Coulomb charge experience the F force due to the Q, and if it is 1 Coulomb, what will be the expression? If it is 1 Coulomb, then what will be in 1 Coulomb? F वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? F Q नॉट Coulomb इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है. Q नॉट Coulomb कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इतने अमाउंट का. तो जो आपका 1 Coulomb है वो कितना एक्सपीरियंस करेगा? Q नॉट खत्म हो जाएगा. ये क्या बच गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट by 1/r vector का स्क्वायर. Pay attention students, this is the conclusion. This is a very important thing. Can you see? This amount of force which is experienced by the unit positive discharge is known as, what it is known as? This amount of force is known as electric field. This amount of force is known as electric field. So I can write it as, what I can write? I will write that E vector is equal to F vector upon Q naught. Getting my point? E vector is equal to F vector upon Q naught. In language, what we can say? That it is the amount of force experienced by unit positive discharge. Q naught amount के चार्ज को जब रखा था हमने कैपिटल Q के रेंज में, तो हमारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस हो रहा था? हमारा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था F वेक्टर. तो 1 कूलम के लिए कितना होगा? F वेक्टर बाय Q नॉट. So that is called electric field. That is called what? That is called electric field. So this way you can find out the value of electric field. अब यहाँ पे एक बात तुमको ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है? तो यहाँ से जो E का एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लासेस को, जरा ध्यान से देखिए आप लोग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आई बात समझ में? So what we can write? E vector is proportional to 1/r square. May I write? Yes, of course. So E is proportional to r square. It means what? It means what? For the same value of r, in any direction, the value of electric field to a single charge will remain constant. हुआ कि नहीं हुआ? करने का मतलब ये है कि अगर r की वैल्यू फिक्स रखेंगे, अगर रेडियस हम फिक्स रखेंगे, तो हमारा जो पेरिफेरी पे यानी कि सर्कमफेरेंस पे जितना पॉइंट होता है सेंटर से, r डिस्टेंस तो इक्वल है. एक पर्टिकुलर अगर स्फेयर आप ड्रॉ करोगे, स्फेयर में बोल रही हूँ, सर्किल नहीं बोल रही, क्योंकि पहले ही बोला है कि ये स्पेस की बात कर रहे हैं, हम सर्किल की बात नहीं कर रहे हैं. सर्किल मेरा 2D पिक्चर है और स्पेस मेरा जो है वो 3D पिक्चर है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट स्फेरिकल सिमेट्री, नॉट द सर्कुलर सिमेट्री. आई बात समझ में? स्फेरिकल सिमेट्री की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ जो E वेक्टर है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? 1/r स्क्वायर के. 1/r स्क्वायर के. इट मीन्स एट द फिक्स वैल्यू ऑफ r, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन्स कांस्टेंट. दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्रिकल. या कह सकते हैं इसको सेकंड लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमारी स्फेरिकली सिमेट्री होती है. इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर स्फेरिकल सिमेट्रिकल. Electric fields are spherically symmetric. अब यहाँ से मैं एक पॉइंट पे फिर आऊंगी, वापस इस पॉइंट पे मैं आती हूँ. Is that okay? So now coming back to this formula, now I will tell you that मैंने अभी क्या कहा. ओके चलो डन. सो E इक्वल टू क्या है? F by Q. F is what? Vector. Q is स्केलर. F क्या है मेरा? तो F है मेरा वेक्टर और Q क्या है मेरा? स्केलर. हमने पढ़ा है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दैट इज व्हाई E इज व्हाट? वेक्टर. ये क्या है मेरा? वेक्टर है. ठीक है. और देखो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ये Q को अगर हम इग्नोर करें या Q नॉट इज इक्वल टू 1 ले लें, तो E वेक्टर जो है मेरा, if okay, just write it like this. If Q naught is equal to 1 coulomb plus 1 coulomb, then what?
E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, हो गया। E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F वेक्टर। तो यहाँ से आपका डेफिनेशन आ गया कि व्हाट इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द रेंज इन द रीजन ऑफ एनी चार्ज इन अ वेरी हाई चार्ज, इन द रीजन ऑफ वेरी हाई चार्ज। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी किस तरह के चार्ज को तुम लोगे। तो अब यहाँ पे तुमको यहाँ एक चीज गौर करना है कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, E वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, F वेक्टर। इट मींस व्हाट, इट मींस व्हाट, it means what, the direction of electric field is same as the direction of Coulomb's force. It means what, that is the direction of electric field is same as the direction of F vector acting at that point। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आपको इसमें बहुत इसको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर एक्टिंग एट दैट पॉइंट। ओके, कमिंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। अब आती है बात कि हम क्या लेंगे, किस फील्ड की बात करेंगे, किस चार्ज को लेंगे। तो चलो भाई, ये देखो यहाँ पर हमने लिया था कैपिटल Q की मैं बात कर रही थी, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हमने क्या क्या नाम दे दिया, इसका नाम हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखो मैं दो तरह की चार्ज की बात करूंगी। एक तो ये है कि जिसके कारण हमारा इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसके कारण की अट्रैक्शन, ये जो पूरा का पूरा रेंज है ना, ये इसके हम क्या कहते हैं, इसके कार्यक्षेत्र के अंदर में है। कैसे है ना कि हमारी जो है ना प्रभुता चलती है वहाँ पे, हमारा शासन चलता है वहाँ पे। तो ये क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये पूरा इसका यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे पूरा एकदम इस पे ये अब इस बाउंड्री तक ये अपना इफेक्ट दिखा रहा है। अब इसके इफेक्ट को चेक करने के लिए हमें एक कोई ना कोई चार्ज तो लेना होगा, क्योंकि अदरवाइज हाउ विल वी जज द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि देखो ये चार्ज जो है ये O यहाँ पे हमने डाल दिया, चार्ज हमने O यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा A और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे B। तुम जरा सोच के देखो कि क्या A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, EA इज इक्वल टू EB? नहीं होगा। EA इज इक्वल टू EB बिल्कुल गलत है ये कहना, इज नॉट इक्वल टू EB। तो अब सवाल ये होता है कि EA इज नॉट इक्वल टू EB, तो आखिर ये होगा कैसा, कितना, या अगर अमाउंट है तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटरमाइन करने के लिए हमें एक दूसरा चार्ज लेना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज के इफेक्ट को चेक करने के लिए हमें चार्ज ही ले सकते हैं और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो चार्ज लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है बच्चों, दैट इज यू टेक द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज द हाइपोथेटिकल कांसेप्ट। प्लीज टेक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। You take the unit positive test charge. Now, if you take the unit positive test charge, so suppose this will be 1 coulomb. So first of all, you take it here. So let that distance will be something R1 या RA ले लो, कोई बात नहीं है। ये डिस्टेंस ले लो, तुम RB ले लो। तो दोनों का अपना अपना फोर्स होगा। अगर हम लेते हैं तो EA की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारी 1/4πε0 Q अपॉन RA वेक्टर का होल स्क्वायर, और EB जो है वो हो जाएगा हमारा कितना, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन RB वेक्टर का होल स्क्वायर। ओके, सो दैट द बोथ विल बी डिफरेंट, EA एंड EB विल बी डिफरेंट। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हमने यहाँ 1 कूलम ना लेकर के कुछ और ले लिया, 1 कूलम नहीं लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग सा चार्ज ले लिया, कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज कि ये जो कैपिटल Q है ये तुम्हारा है अप्रोक्स 100 कूलम के आसपास, ये तुम्हारा 100 कूलम के आसपास, और यहाँ पे तुमने प्लेस कर दिया 90 कूलम। जस्ट इमेजिन, मतलब सपोज करने का रही, तो 100 कूलम और 90 कूलम में कुछ खास फर्क नहीं है, 10 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज का डिफरेंस नहीं है। कहने का मतलब कि 100 कूलम तो 90 कूलम को अफेक्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ 90 कूलम भी 100 कूलम को अफेक्ट करेगा। आई बात समझ में? A B पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो B भी तो A पे एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द न्यूटोनियन फार्मूला, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो एक्शन एंड रिएक्शन वाली बात है, तो A B पे करेगा, B A पे करेगा, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो एक ओवरऑल फील्ड मिलेगा हमें, नहीं मिलेगा।
एक में ये इधर से धक्का दे रहा है, वो उधर से धक्का दे रहा है, तो रिजल्ट में क्या होगा, धक्का मुक्की में कुछ तो होगा, या जो ज्यादा ताकतवर है वो कमजोर वाले के क्षेत्र में चला जाएगा, यही होगा। तो अगर ऐसा होगा तो जो एक्चुअल फील्ड हमें डिजाइन करना है, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो तो चेंज हो गया, क्योंकि वो जो अब मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ टू चार्जेस, ड्यू टू इंटरैक्शंस ऑफ टू चार्जेस। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी? क्योंकि हमें पता क्या करना था कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता करना है कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इसके रीजन में, इसके नेबरहुड में जो दूसरा चार्ज है, हम भी हैं, यू कैंट इग्नोर मी, यू कैन नॉट अवॉइड मी, ये सारी बातें आ गई। तो इनको हमें दूर करना होगा। बात समझ रहे हो ना, क्यों दूर करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो there will be one force F1, another force F2. Similarly, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड E2, and you will get the vector sum of E1 and E2. चाहे जो डायरेक्शन हो जाए, या E1 plus E2 होगा, E1 minus E2 होगा, जिस एंगल से वो वेरी आउट करे, जो भी आपका वेक्टर का फॉर्मूला हम उसको अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों ही फैक्ट्स जो हैं हमारे मेन मोटो को, मेन एम को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसको करने का तरीका क्या है कि एक चार्ज जिसका कि आपको रेंज पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता करना है, आप उसको सिग्निफिकेंटली दूसरे की तुलना में काफी हाई रखो। क्या रखो? काफी हाई रखो। काफी हाई रखने से क्या होगा बताओ? ये होगा कि अगर आपका दूसरा चार्ज पहले की तुलना में काफी कमजोर है तो वो स्ट्रॉन्ग वाले पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। बाहुबली को एक आम जनता कुछ भी नहीं कर पाती, देखा होगा आप लोगों ने। तो what does it mean? That if the charge, one charge will be at significantly very high value in comparison to the other charge, in comparison to the other charge on which we are going to experience the electric field due to that bigger charge, करने का मतलब क्या है कि अगर दूसरा चार्ज जिसके ऊपर फील्ड को हमको एक्सपीरियंस करवाना है, जो कि हम यहाँ पे क्या लिखे 90 कूलम, तो इसको अगर हम बहुत ही कम कर दें, इसको अगर हम सिग्निफिकेंटली बहुत कम कर दें, तो क्या होगा रीजन? तो रिजल्ट ये होगा कि ये बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा इसका, ये तो इसका बिगाड़ेगा। अब कैसे बिगाड़ेगा? अगर पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल मारेगा, इधर रिपेल करेगा, अगर निगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये जो है कुछ नहीं कर पाएगा। ये तभी संभव है जब इसकी वैल्यू 90 कूलम ना होकर के क्या हो, बहुत कम हो। बहुत कम हो तो मान लो कि इसको हमने लिख दिया है स्मॉल q, ये हो गया कैपिटल Q और ये हो गया स्मॉल q। तो तुमको यहाँ कंडीशन क्या लगाना होगा डियर स्टूडेंट्स, दैट कैपिटल Q विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल q। अब देखो ये कैपिटल स्मॉल तो मैम बहुत डिफिकल्ट है भाई, कैसे भाई कल एग्जाम हॉल में तो कैपिटल स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसे नहीं याद करते, इसको कैसे याद रखते हैं? फील्ड किसका निकालना है? इसका। फील्ड किसका निकालना? इसका। इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स मतलब क्या? जो प्रोड्यूस करता है। क्या कहते हैं इसको? सोर्स चार्ज। सो व्हाट इट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड माय सोर्स चार्ज। आई बात समझ में? और इसको क्या कहते हैं? जिसपे हम फील्ड के इफेक्ट को जज करें। यहीं पे बैठाया था ना इसको, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट आई समझ में? एकदम पूरा गड़बड़ हो रहा है। देखो फिर से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रही हूँ कि जब भी हमें किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके रीजन को फाइंड आउट करना रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? चार्ज का निकालेंगे। तो चार्ज छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना फील्ड होगा, एक रेंज होगा जहां तक कि वो अपना प्रभाव दिखाएगा। तो वो जो रेंज है, दो चार्ज अगर हम बराबरी का ले ले, एक Q1 एक Q2, एक 10 कूलम एक 12 कूलम, तो दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट कर लेंगे। तो भाई हम किसका फील्ड निकाल रहे हैं? जो हमें रिजल्ट में मिलेगा वो 10 कूलम का मिला है या 12 कूलम का मिला है, नहीं पता चलेगा। तो ये कब पता चलेगा? अगर मैं एक ले लूं 12 कूलम और दूसरा ले लूं 1 कूलम, बहुत गैप हो गया ना। तो एक हाई है एक बहुत ही कम है, तो 1 कूलम तो कुछ नहीं कर पा रहा है 12 कूलम के ऊपर। तो जो रिजल्ट मिला वो किसके कारण मिला? 12 कूलम के कारण। आई बात समझ में? इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब जिस
चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसका रीजन निकाल, देखो अभी देखो यहाँ पे तो मैथमेटिकल की तरफ हम लोग जा नहीं रहे, वो भी हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। हम तो यहाँ पे एक स्पेस, एक फील्ड डिजाइन करें। क्रिकेट खेलते हैं तो हम लोग फील्ड बनाते हैं ना कि पिच जो है वो 11 मीटर की होगी या जितनी भी होती है, और उसके बाद आपका जो बाउंड्री है वो कहाँ तक होगा, तो वही रेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो जो रेंज निकाल रहे हैं, जिसका निकालना है, उस चार्ज को क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। अब उस सोर्स चार्ज को इफेक्ट करने के लिए, उसका इफेक्ट जज करने के लिए कोई तो चाहिए, तो जिसके ऊपर जजमेंट होगा उसको क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। बस याद ये रखना है कि सोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द टेस्ट चार्ज। आई बात समझ में? सोर्स चार्ज जो होगा वो टेस्ट चार्ज की तुलना में बहुत ज्यादा। सो कहने का क्या मतलब है, देख लो फटाक से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी को भूलने की इजाजत नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू फॉरगेट दिस पॉइंट्स, ओके? सो क्या कहता है ये? दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज इज वेरी larger than the magnitude of discharge. आई बात समझ में? What does it mean? Capital Q is very very greater than small q. अब तो क्या सबसे अच्छा तो ये होगा कि अगर हम Q को कम करते करते तो हम जीरो कर दें, तो जीरो हम नहीं कर सकते हैं। जीरो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मिनिमम जो पॉसिबिलिटी है चार्ज डेवलप होने की वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज -1.6 जो है आपका, यानी कि उसके प्रोपोर्शनल जो चार्ज डेवलप होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटे चार्ज की कल्पना आप नहीं कर सकते। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज क्या हो जाएगा? सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू, प्लीज नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज इज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। छोटा टेस्ट चार्ज होने से फायदा क्या होता है कि जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाले हैं, वो फील्ड की जो क्या कहा जाए, वो जो निकल रहा है फील्ड, वो बहुत ही एक्यूरेट होगा। फील्ड तो Q को बढ़ा भी दोगे टेस्ट चार्ज को तो भी निकल जाएगा, लेकिन वो फील्ड जो होगा वो इंटरप्टेड फील्ड होगा, उस पे टेस्ट चार्ज का इफेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो इंटरप्शन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड को बहुत ही कम कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेफिनेशन हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हमने निकाल लिया था यहाँ पे कि ई वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? एफ वेक्टर बाय क्यू होता है। अगर इसको बहुत एक्यूरेसी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे कि लिमिट Q टेंस टू 0। लेकिन देखो मैंने Q टेंस टू 0 बोला है, Q इक्वल टू 0 नहीं बोला है, क्योंकि ये Q इक्वल टू 0 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है कि आप Q को 0 कर दे, क्योंकि Q का जो मिनिमम वैल्यू होगा, टेस्ट चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उससे कम होने की गुंजाइश नहीं बन रही है। आई बात समझ में? ओके, सो ई वेक्टर मोर एक्यूरेसी के साथ अगर लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट Q टेंस टू 0 एफ वेक्टर अपॉन Q नॉट। Q नॉट दे दो, टेस्ट चार्ज को डिनोट करने में सही रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग दैट Q नॉट इज इक्वल टू व्हाट? E is equal to what? Q नॉट टेंस टू 0, लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 F अपॉन Q नॉट। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? Q टेंस टू 0 आप कहोगे कहाँ ले सकते हैं? तो जब हम लोग स्मॉल स्केल पे बात करते हैं तो वहाँ पे हर चार्ज को डिस्क्रीट लेकर के हम लोग प्रोसीड करते हैं। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो इसका भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप देख सकते हैं इसको, कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज नेचर का होता है, डिस्क्रीटनेस होती है। लेकिन जब हम लोग मैक्रो की बात करते हैं, यानी कि लार्ज स्केल की, मैक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल की, तो उस केस में माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम मान लेते हैं ऑलमोस्ट कि देयर इज कंटिन्यूटी। तो उस केस में
आप यहाँ पर 0 कर सकते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लार्ज स्केल में आप चार्ज को कंटिन्यूस ले लेते हैं, लेकिन जब स्मॉल लेवल की बात करते हैं तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड के ही फैक्ट के आगे हम काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज अ स्पेस प्रॉपर्टी ऑफ एनी चार्ज। इट मीन्स व्हाट, कि चारों तरफ के अपने चारों तरफ के एक रेंज को डेवलप करना जहाँ तक कि आप उसके इफेक्ट को महसूस कर पाए। यू कैन फील द इफेक्ट ड्यू टू एनी चार्ज, कि कोई है जिसके कारण कि हम या तो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वही मैं एक लाइन बस और है, उसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव रिटन ऑल दिस पॉइंट्स इन योर नोट कॉपी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट एस्केप, डोंट एस्केप। सो ओके, नाउ सपोज दैट इफ के दो तरह की बातें होंगी, क्योंकि हमने सोर्स चार्ज लिया Q, तो वन केस इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, एक केस ये हो गया, और दूसरा इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव। ओके, तो अगर सोर्स चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो जिस पे हम टेस्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, जिस पर हम टेस्ट करते हैं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हाइपोथेटिकल है। मान के चल रहे हैं कि टेस्ट चार्ज क्या है मेरा, देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज, ये हमेशा याद रखा स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि अभी ये बहुत जगह काम करने वाला है कि टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डाइपोल निकालेंगे, वहां पे भी देखेंगे कि +1 कूलम पुट करेंगे। इसलिए जब भी टेस्ट चार्ज आए दिमाग में एकदम आंख मूंद के +1 कूलम बता देना। तो देखो अगर मेरा सोर्स चार्ज Q पॉजिटिव है, कैपिटल Q, यही है ना सोर्स चार्ज, यही है, कंफ्यूजन ना हो, चलो लिख दिया। तो टेस्ट चार्ज अगर +1 कूलम आएगा तो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, तो जो फील्ड होगा वो इधर। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे मेरा सोर्स चार्ज नेगेटिव आ गया, सोर्स चार्ज क्या आ गया, Q जो है वो नेगेटिव है, और टेस्ट चार्ज क्या होता है भाई, हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल, अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस केस में इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्या हो रहा है, बाहर की तरफ, ये दिख रहा है। और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इट इज रेडियली इनवर्ड, दिख रहा है, थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ। Are you getting my words? कि if the source charge is positive, in that case the direction of electric field is radially outward, बाहर जा रहा है, निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यू टक 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 बाहर निकल रहा है। और अगर वो नेगेटिव है सोर्स चार्ज तो क्या होगा, सब हमारे अंदर आ रहा है, इनसाइड, इनवर्ड। ओके, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्ड। इसको हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बताओ बताओ क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ E vector is radially, बताओ बताओ, outward। ओके, और इसमें क्या लिखेंगे, E vector is radially inward। ठीक है ना, चलो, that's all। If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you students, thank you for present.